plus 1. Today is June 18 and today evening you will appear in your second e-test. So let's quick revise your conditional and iterative chapter. So first is type of statements. There are three type of statements: empty, single and compound. These are the three type of statements. Okay, now how to control these statements? Empty statement we rarely used in our program. Single and compound statements we use. Now how to control these statements? To control these statements, Python provides us three type of constructs, that is sequence, selection and iteration. Iteration is also known as looping. So what are these? These are constructs which help us to control these statements or control the flow of these statements. Now in sequence constructs, your program contains statements line by line, and in this the flow of control is from top to bottom continuously, line by line. And in case of selection constructs, we use if statement, if and if else or if elif, okay, or maybe nested if. So nested is a type of you can say that it is a form of if statement. Simple if else in combination, and if you want to test more conditions, then if elif. Then comes the iteration constructs. In iteration constructs, there are two loops. One is for and second one is while. Okay. So what is sequence constructs? Sequence constructs means constructing statements line by line to complete your program. Flow of execution is from top to bottom. And in selection constructs, we control statements through the if statement, if else statement or if elif statements. These are the three forms of if statement. And in case of iteration construct, we control our statements through for and while loop. Okay. Now the format of if statement. If statement tests condition, okay, and if this condition is true, it solve statement 1, and if this condition is false, then it solve or execute statement 2. Now the two loops, that is for loop and while loop, they are categorized into two types. For loop is your counting loop. That means it repeats statement or group of statements up to certain number of times. And whereas while loop, it also repeat statement or group of statements certain number of times, but if a condition becomes true. So in case of for loop, that is in case of counting loops, the total number of repetitions are fixed.
or you can say that they are prefixed. Okay, and in case of while loop, the total number of iterations are not fixed, but they are depend upon a condition. ठीक है, वो कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो एक कंडीशन पर डिपेंड करती हैं. ओके, और फॉर लूप में जो है टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो होंगी वो फिक्स होंगी. कंडीशन उसमें भी लगेगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस जो होंगी वो फिक्स होंगी. तो इसलिए फॉर लूप को हम काउंटिंग लूप बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो लूपिंग होती है वो काउंट होती है कि कितनी बार स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है. और वाइल लूप में जो है वो टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, कंडीशन के ऊपर. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फॉर लूप और वाइल लूप के. सो ये फॉर का सिंटेक्स है, फॉर ए इन दिस लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं तो ये लिस्ट है, और कॉलन लगेगा ही क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. ये फॉर जितने भी लूप हैं हमारे वो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं. सो फॉर ए इन लिस्ट मीन्स इसमें ए की वैल्यू जो होगी वो इस लिस्ट पर चलेगी, और इसकी बॉडी में हम क्या लिखते हैं, सपोज प्रिंट ए. ओके, तो ये प्रिंट कर देगा 1 2 3. एक सिंटेक्स इसका ये हो गया. सेकंड, हम इसको स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर ए इन सपोज GAB. ओके, सो प्रिंट ए, यहाँ नहीं आएगा ये सेमी कॉलन, यहाँ कॉलन जरूर आएगा. सो फॉर ए इन GAB प्रिंट ए. अगेन ए की वैल्यू क्या होगी, GAB. तो ये लिस्ट में भी चल सकता है और स्ट्रिंग पे भी चल सकता है. ओवरऑल हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे हम सीक्वेंस को रिप्लेस करते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो लिस्ट हो या फिर आपकी स्ट्रिंग हो. देन कम्स द थर्ड फॉर्म, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन. सो फॉर ए इन रेंज. ओके, अब यही लिस्ट है, इसमें मैंने ए की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ली है, तो वो मैं रेंज फंक्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ. फॉर ए इन रेंज. ओके, अब मुझे स्टार्टिंग क्या है, 1 से करना है. ठीक है, कहाँ तक जाना है, 3 तक. तो मुझे एक पैरामीटर ये जो होगा वो एक आगे लेना पड़ेगा. सो फॉर ए इन रेंज 1, 4. ओके, सो ये वाला कोड और जो फर्स्ट कोड लिखा है ये सेम आउटपुट जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे. ओके, और अकेला रेंज फंक्शन अगर आपको समझना है तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो मैंने एक वीडियो में पहले बताए थे. एक स्टार्टिंग पैरामीटर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है. अगर मैं लिखूँ रेंज 5, ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 1 2 3 4. ओके, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेंज 0 5. और ओके, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 5 1, क्योंकि 1 जो होती है वो स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है. और इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अब वाइल लूप. तो वाइल लूप को हमने बोला कि वाइल जो है वो एक कंडीशनल लूप है. ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स को समझेंगे. सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल असाइनमेंट आ गई a = 5. फिर हमने एक कंडीशन टेस्ट की वाइल दिस, तो ठीक है ये कंडीशन आ गई, और जो लूपिंग है वो इसी कंडीशन पर जो है वो डिपेंड है, इसलिए वाइल जो है हमारा कंडीशनल लूप है. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो फिक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये 5 से चलेंगी और 1 तक, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ तो 5 4 3 2 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस लग रही हैं पता, लेकिन वो फिक्स नहीं है. अगर हम ए की वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हमारी रेपिटेशंस भी चेंज हो जाएंगी. ओके, तो एक इनिशियल वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, फिर एक कंडीशन चाहिए, और ये आती है वाइल लूप की बॉडी, जिसमें जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस वैल्यू का जरूर चाहिए. ठीक है, तो ये वैल्यू जो 3 जगह यूज़ होती है. एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, साथ में कंडीशन पर जहाँ पे वो कंडीशन टेस्ट की जाएगी, और थर्ड उसकी बॉडी में उसको या तो इंक्रीज़ किया जाएगा या फिर डिक्रीज़ किया जाएगा, और रेस्ट जो होगा वो इसकी अपनी स्टेटमेंट्स होंगी जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं.